The untouchable students were Constitution which it prepared and therefore intervened in nearly every debate. for the rights of Dalits and other backward classes. Ambedkar was appointed as the nation's first law minister in the cabinet of Jawaharlal Nehru. He was posthumously awarded by Bharat Ratna in year 1990. Dr. B.R. Ambedkar was himself a victim of caste discrimination. His parents hailed from Hindu Meher caste, which was viewed as untouchable by the upper caste people. Due to this, Ambedkar had to face severe discrimination throughout his life. Civil liberties for individual citizens, including freedom of religion, the abolition of untouchability, and outlined all forms of discrimination. Ambedkar argued for extensive economic and social rights for women and also won the Constitutional Assembly's support for introducing a system of reservation of jobs for members of SC and ST. Ambedkar kept the clauses of the Constitution flexible so that amendments could be made as and when the situation demanded. He provided an inspiring preamble to the Constitution and Stop finding pride for your caste. Let you be a human tribe, a tribe of the human. Now, I would request Mr. Satwinder Singh Arora, lecturer, Boys Higher Secondary School, to disseminate his views with all of us. Sit inside the class, and when they needed water to drink someone from higher, and देखिए कि कितने की बात है ये, हम बेशक इनकी लाइफ से हम पढ़ते आ रहे हैं। एक मजेदार बात ये देखिए कि क्या है कि जब एक जो बच्चा है डाउन ट्रोडन कास्ट से है, वो जब वो पानी मांगता है, उस बच्चे को जो पानी जो है वो एक हायर जो लेवल का है, हायर कास्ट का बच्चा है जो है वो उसको पानी पोल करता है, अपना एक ऊंची जगह से उसको छोड़ता है और नीचे से वो जो पानी वो ऐसे करके वो पीता है। ये देखिए ये हमारी क्या है कि बदकिस्मती है, वी आर वेरी मच अनफॉर्चुनेट। अभी तक भी मैं ये कहता हूँ कि वो जो है हमारे कास्ट हमारे दिमागों से जो कॉन्स्टिट्यूशन में बेशक हमारे पास ये लॉ बन गए हैं, लेकिन हमारे दिमागों से वो बात अभी तक नहीं निकली है, जिसको बाबा साहब ने रिमूव करने की कोशिश की। As a defense secretary for the princely state of Baroda in 1927, Dr. B.R. Ambedkar worked against untouchability. He followed the footsteps of Gandhi and led up the Ambedkar's intervention and advocacy centered more around the protection and furtherance of Dalit rights. As a result, he often clashed with the Indian National Congress. He also played a key role in social movements that fought for the rights of untouchables to access public utilities and temples such as the Mahal Satyagraha. Now, contribution of Dr. B.R. Ambedkar in drafting Constitution. The Indian Constitution and its drafting process are often seen as synonymous with Ambedkar. He was regarded as the father of the Indian Constitution and is probably the most well-known of all Constituent Assembly members. Ambedkar became a key figure in India's constitution-making process due to the offices he held. No being, no water. Such was the vessel को जिसमें पानी पड़ा हुआ था उसको भी वो नहीं छू सकते थे। ये हमारे क्या हम, लेकिन आज तक भी हम हमारे यहाँ की बात नहीं करता जम्मू कश्मीर की, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स जो ऐसे हैं जिनमें आप ये देखते होंगे कि बहुत सारा जो कास्ट कलर क्रीड जो है अभी तक हमारे दिमागों से वो नहीं गया है। The task was usually performed by the young Ambedkar, by the school peer and social science discipline of economics. Social reformer is someone who tries to change and improve something such as law or a social system, who fought economic and social discrimination against untouchable in India's Hindu society. He served as the chairman of drafting committee of the Constitution of India and Minister of Law and Justice in the first cabinet of Jawaharlal Nehru from 1947 to 1951. Ambedkar was a prolific student, earning doctorates in economics from both Columbia University and London. दलित समुदाय को उनका हक दिलाने के लिए इन्होंने महत सत्याग्रह शुरू किया, क्योंकि महत सरोवर में दलित समुदाय की परछाई को भी अछूत माना जाता था। बी.आर. अम्बेडकर जी भारत के इतने महान सेनानी थे कि उनकी जीवनी को
पुस्तक के रूप में पढ़ाया जाता है। अनुच्छेद 370, जिसको अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर से हटाया गया है, इस अनुच्छेद को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पहले से ही लोकतंत्र के खिलाफ मानते थे। डॉक्टर अम्बेडकर जी ऐसे धर्म को मानते थे जो स्वतंत्रता, भाईचारा और समानता सिखाता है। डॉक्टर अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है और ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन। और गरीबी का जो शुरू में ही उन्होंने ये देखा कि जितना भी हमारा दलित समाज है, उन लोगों को समाज के उच्च वर्ग के लोगों की प्रताड़ना है जो उसको बर्दाश्त करना पड़ रहा है। उन्होंने इस चीज के खिलाफ काफी आवाज उठाई। कहते हैं कि जुल्म को सहना भी गलत बात होती है, लेकिन बाबा साहब जी डरे नहीं। उन्होंने दलित समाज को सबके बराबर लाकर खड़ा कर दिया। हमारे संविधान के रचयिता बाबा साहब B.R. अम्बेडकर, अगर हम उनके योगदान को देखें तो जो ये हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके जो चेयरमैन थे, इतने इंटेलिजेंट थे कि अगर हम इनकी डिग्रियों का शुमार करें तो मेरा ख्याल है कि उतनी डिग्रियां गिनना ही बड़ी मुश्किल हो जाता है। अगर कहा जा गया है कि इन्होंने 35 डिग्रियां की हुई, उसमें कुछ डॉक्टरेट की डिग्रियां थी। इतना ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान आज तक दुनिया में कोई नहीं हुआ है। जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है न्यूयॉर्क की, कि मेन मोटिव क्या है इंसान का इस दुनिया में पैदा होके क्या करना है और लास्ट में उसने क्या करना है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से बढ़ के कोई एग्जांपल आपको मिलेगी नहीं। टफेस्ट सिचुएशन में उन्होंने जो एजुकेशन गेन की, उसके लिए हमारे पास मैसेज है कि लाइफ में जितनी मर्जी डिफ़िकल्टीज हों, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप स्टूडेंट लोग एक बार डिसाइड कर लें, अगर माइंड में डिसाइड कर लें, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। तो अपनी लाइफ को उनके अकॉर्डिंग जो है आप अगर ढाना शुरू करें तो इट विल बी उनको जो है हम कहेंगे एक श्रद्धांजलि, जो सच्ची श्रद्धांजलि वो होगी। एंड टाइम टू टाइम उसमें अमेंडमेंट्स वगैरह भी होती हैं, जहाँ पे ये देखा जाता है कि उस टाइम जो कुछ लॉज बने थे या आर्टिकल्स बने थे और आज की डेट में अगर उनकी कोई वैलिडिटी नहीं है तो उसको टाइम टू टाइम अमेंडमेंट जो है हमारी असेंबली में उसको अमेंडमेंट भी किया जाता है। B.R. अम्बेडकर जो थे एट हिज लेटर स्टेज he joined Buddhism. He became Buddhist and B.R. अम्बेडकर जो थे उनकी काफी ज्यादा फॉलोइंग थी। He became Buddhist और लास्ट 4-5 years जो थे उन्होंने टोटली उसी में डिवोट किए एंड अबाउट 5 लाख उसके फॉलोअर्स थे। दे आल्सो बिकेम बुद्धिस्ट और लेटेस्ट स्टेज पे उन्होंने बुद्धिज्म को फॉलो किया क्योंकि उन्होंने देखा कि वहां पे ये अनटचेबिलिटी का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया और उनके फॉलोअर्स जो थे उन्होंने भी बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया। या इस दुनिया को छोड़ा था, बट ही इज अलाइव विद अस बाय हिज टीचिंग्स, बुक्स, कॉन्स्टिट्यूशन और विजन। और जितने भी हमारे यहाँ बच्चियां बैठी हैं उनको फक्र होना चाहिए कि जो वुमेन्स को राइट थे वो B.R. अम्बेडकर जी ने दिलाए थे, के अंदर एक्सेल कर सकती हैं। सबने लेबोरेट तरीके से यहाँ बताया कि वो किस समाज से आते थे, पर अम्बेडकर किसी एक समाज के नहीं थे। ही इज द लीडर, he is the personality of all religions, all citizens of the India. वो देश के हर व्यक्ति के एक मुखिया थे, क्योंकि जब उन्होंने संविधान बनाया तो जब वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उस समय दे रहे थे तो उन्होंने एक बात कही थी उस समय पार्लियामेंट के अंदर कि दुनिया का कोई भी संविधान जितना मर्जी अच्छा हो, पर अगर उसको इंप्लीमेंट करने वाले बुरे हों तो वो बुरा साबित होता है। अगर कहीं का भी संविधान जितना मर्जी बुरा हो, पर अगर उसकी जो लोग हैं वो अगर इंप्लीमेंट सही तरीके से करते हैं तो वो सही साबित होता है।
अनटचेबिलिटी थी हमारे देश के अंदर। उन्होंने दो जगह फ्रंट पे वो कहते थे कि हमें लड़ना है, एक अपनों से लड़ना है, एक ब्रिटिशर्स से लड़ना है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि हम अंबेडकर जी को याद करते हैं। अंबेडकर जो नाम है वो उनके गुरु ने उनको दिया था, जिनको उन्होंने अंबेडकर जी को, जो बाबा साहब थे, उनको अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन जब वो कर रहे थे तो वो अंबेडकर गुरु थे जिन्होंने उसको स्कूल में लाया और अपना नाम दिया। और अगर हम उनको याद करते हैं तो उस बहाने आप देखिए कि उस महान शख्सियत जो है उनके गुरु को भी हम साथ याद करते हैं। और उस गुरु का विजन देखिए कि उसने ऐसे बच्चे को पढ़ाया जिसने इतनी डॉक्टरेट, आप इकोनॉमिक्स लीजिए, चाहे लॉ की डिग्री लीजिए और कोई पर्शियन लीजिए, उसमें भी उन्होंने एक्सेल किया। और अगर वो डॉक्टरेट थे तो तभी ही आरबीआई की स्थापना हो सकी, क्योंकि आज हमारा जो पैसा है वो जब बैंक में हम जमा करते हैं तो उसकी गारंटी आरबीआई देता है। ये हम सब लोगों को पता होना चाहिए कि, और इस जो महापरिनिर्वाण दिवस है, इस दिन इन्होंने अपने शरीर को यहाँ छोड़ा। संजना शर्मा of श्रेया घुंगल, प्रिया कपूर, है और मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नौशहरा में पढ़ती हूँ। मैं 5th सेमेस्टर में हूँ। आज हमारे कॉलेज में महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया, जो कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के साथ मनाया गया था। आज हमने डॉक्टर अंबेडकर की पूरी लाइफ हिस्ट्री के बारे में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने सबने अपने अपने व्यूज़ प्रेजेंट किए। इसके साथ हमारे चीफ गेस्ट भी आज थे यहाँ पर, एडीसी सर, उन्होंने भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताया। और हमें अंबेडकर जी से सीखना चाहिए कि हमें रिलीजन, अनटचेबिलिटी, इन चीज़ों से बाहर निकलकर सबको इक्वल नज़रिए से देखना चाहिए।